1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय, ल्यूक 23 चैप्टर 50 वर्स से 24 चैप्टर 1 से 12 वर्स और 2 सैमुअल 7 चैप्टर 8 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 23 अध्याय 50 वचन से 24 अध्याय 1 वचन से लेकर 12 वचन तक, और दूसरा शमूएल 7 अध्याय 8 अध्याय। इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। ल्यूक 23 50 वर्स से And behold, there was a man named Joseph, a counselor, and he was a good man and a just. The same had not consented to the council and did of them. He was of Arimathea, a city of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God. This man went unto Pilate and begged the body of Jesus, and he took it down and wrapped it in linen and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid. And that day was the preparation, and the Sabbath day drew on. And the woman also which came with him from Galilee followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid. And they returned and prepared spices and ointments, and rested the Sabbath day according to the commandment. Chapter 24 1 वर्स से 14 वर्स तक पढ़ेंगे। 1 वर्स से 12 वर्स तक पढ़ेंगे। Christ's resurrection and ascension. First verse say, Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre. And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, 2 men stood by them in shining garments. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee, saying, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. And they remembered his words, and returned from the sepulchre, and told all these things unto the 11, and to all the rest. It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles. And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not. Then arose Peter, and ran unto the sepulchre, and stooping down he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass. लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 50 वचन से लेकर हम 22 अध्याय के 22 अध्याय 23 अध्याय का 50 वचन से लेकर 24 अध्याय का 1 वचन से 14 वचन तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 50 वचन से शुरू करेंगे, फिर 24 अध्याय में चलेंगे और उसमें से 1 वचन से 14 वचन तक पढ़ते हुए जाएंगे। यीशु का गाड़ा जाना। वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था, जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरमीतिया
अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी, और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सप्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। यीशु का पुनरुत्थान 24 अध्याय 1 वचन से। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलीनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी से जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। 2 सैमुअल 7th चैप्टर 1 वर्स से पढ़ेंगे, फिर 8th चैप्टर पढ़ेंगे। 7th चैप्टर किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हम। Nathan approves the purpose of David to build God an house. God appoints his successor to build it. David's prayer and thanksgiving, first verse. And it came to pass when the king sat in his house, and the Lord had given him rest round about from all his enemies, that the king said unto Nathan the prophet, See now, I dwell in an house of cedar, but the ark of God dwelleth within curtains. And Nathan said to the king, Go, do all that is in thine heart, for the Lord is with thee. And it came to pass that night that the word of the Lord came unto Nathan, saying, Go and tell my servant David, Thus saith the Lord, Shalt thou build me an house for me to dwell in? Whereas I have not dwelt in any house since the time that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day, but have walked in a tent and in a tabernacle, in all the places wherein I have walked with all the children of Israel, spake I a word with any of the tribes of Israel, whom I commanded to feed my people Israel, saying, Why build ye not me an house of cedar? Now therefore so shalt thou say unto my servant David, Thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, and to be ruler over my people, over Israel. And I was with thee whithersoever thou wentest, and have cut off all thine enemies out of thy sight, and have made thee a great name, like unto the name of the great men that are in the earth. Moreover, I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, that they may dwell in a place of their own, and move no more, neither shall the children of wickedness afflict them any more.
as before time, and as since the time that I commanded judges to be over my people Israel, and have caused thee to rest from all thine enemies. Also the Lord telleth thee that he will make thee an house, and when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men. But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee. And thine house and thy kingdom shall be established for ever before thee. Thy throne shall be established forever. According to all these words and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. Then went King David in and sat before the Lord, and he said, Who am I, O Lord God, and what is my house, that thou hast brought me hitherto? And this was yet a small thing in thy sight, O Lord God, but thou hast spoken also of thy servant's house for a great while to come. And is this the manner of man, O Lord God? And what can David say more unto thee? For thou, Lord God, knowest thy servant. For thy word's sake, and according to thine own heart, hast thou done all these great things to make thy servants know them. Wherefore thou art great, O Lord God, for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears. And what one nation in the earth is like thy people, even like Israel, whom God went to redeem for a people to himself, and to make him a name, and to do for you great things and terrible for thy land before thy people, which thou redeemest to thee from Egypt, from the nations and their gods. For thou hast confirmed to thyself thy people Israel to be a people unto thee forever, and thou, Lord, art become their God. And now, O Lord God, the word that thou hast spoken concerning thy servant and concerning his house, establish it forever, and do as thou hast said, and let thy name be magnified forever, saying, The Lord of hosts is the God over Israel. And let the house of thy servant David be established before thee. For thou, O Lord of hosts, God of Israel, hast revealed to thy servant, saying, I will build thee an house. Therefore hath thy servant found in his heart to pray this prayer unto thee. And now, O Lord God, thou art that God, and thy words be true, and thou hast promised this goodness unto thy servant. Therefore now let it please thee to bless the house of thy servant, that it may continue forever before thee. For thou, O Lord God, hast spoken it, and with thy blessings let the house of thy servant be blessed forever. Chapter 8. David subdues the Philistines and makes the Moabites tributary. He smites Hadadezer and the Syrians. His reign. First verse. And after this it came to pass that David smote the Philistines and subdued them. And David took Methegama out of the hand of the Philistines. And he smote Moab and measured them with a line, casting them down to the ground, even with 2 lines measured to put to death, and with 1 full line to keep alive. And so the Moabites became David's servants and brought gifts. David smote also Hadadezer the son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his border at the river of Euphrates.
And David took from him 1,000 chariots and 700 horsemen and 20,000 footmen, and David halved all the chariot horses, but reserved of them for 100 chariots. And when the Syrians of Damascus came to succor Hadadezer, king of Zobah, David slew of the Syrians 22,000 men. Then David put garrisons in Syria of Damascus, and the Syrians became servants to David and brought gifts, and the Lord preserved David whithersoever he went. And David took the shields of gold that were on the servants of Hadadezer and brought them to Jerusalem, and from Beth-ah and from Berothai, cities of Hadadezer, King David took exceeding much brass. When Toi, king of Hamath, heard that David had smitten all the host of Hadadezer, then Toi sent Joram his son unto King David to salute him and to bless him, because he had fought against Hadadezer and smitten him. For Hadadezer had wars with Toi, and Joram brought with him vessels of silver and vessels of gold and vessels of brass, which also King David did dedicate unto the Lord with the silver and gold that he had dedicated of all all nations which he subdued, of Syria and of Moab and of the children of Ammon and of the Philistines and of Amalek and of the spoil of Hadadezer, son of Rehob, king of Zobah. And David gat him a name when he returned from smiting of the Syrians in the valley of Salt, being 18,000 men, and he put garrisons in Edom. Throughout all Edom put he garrisons, and all they of Edom became David's servants. And the Lord preserved David whithersoever he went, and David reigned over all Israel. And David executed judgment and justice unto all his people. And Joab the son of Jeruiah was over the host, and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder. And Zadok the son of Ahitub and Ahimelech the son of Abiathar were the priests, and Siriah was the scribe, and Benaiah the son of Jehoiada was over both the Cherethites and the Pelethites, and David's sons were chief rulers. 2 Samuel 7 chapter, दूसरा शमूएल 7 अध्याय 8 अध्याय पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। दाऊद को नातान नबी का संदेश। 7 अध्याय पहले वचन से। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूँ कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल के चरवाही करने की को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपने प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी।
और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इसराइल के ऊपर न्यायी ठहराता था। और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसी न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। दाऊद की प्रार्थना 18 वचन से आगे। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझ से और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कर्ता से सुना, अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इसराइल के भी तुल्य कौन है। वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तू अपनी प्रजा के सामने, जिसे तूने मिस्री आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। और तूने अपनी प्रजा इसराइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर। और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करे कि सेनाओं का यहोवा इसराइल के ऊपर परमेश्वर है। और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इसराइल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूँगा। इस कारण तेरे दास को तुझ से यह प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है। और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है। और तेरे दास का घराना तुझ से आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। दाऊद की विजय 8 अध्याय पहले वचन से। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीत कर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। फिर उसने मोवाबियों को भी जीता और इनको भूमि पर लिटा कर डोरी से मापा। तब 2 डोरी से लोगों को माप कर घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोवाबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। फिर जब सोबा का राजा रहोब का पुत्र हददेजेर महानद के पास अपने राज्य फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको जीत लिया। और दाऊद ने उससे 1700 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए और सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु 100 रथ के लिए घोड़े बचा रखे। जब दमिश्क के अरामी सीबा के राजा हददेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। इस प्रकार अरामी दाऊद के
अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। हददेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया, और बेतह और बरौते नामक हददेजेर के नगरों से दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आया। जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हददेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब तोई ने योराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे इसलिए बधाई देने को भेजा कि उसने हददेजेर से लड़कर उसको जीत लिया था, क्योंकि हददेजेर तोई से लड़ा करता था। योराम चांदी, सोने और पीतल के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही अपने जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, अर्थात अरामियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों और अमालेकियों के सोना चांदी को, और रहोब के पुत्र सोबा के राजा हददेजेर की लूट को भी रखा। जब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद तो समस्त इस्राएल पर राज्य करता था, और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। प्रधान सेनापति सरूया का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था। प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अहीमेलेक थे। मंत्री सराया था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनाया था, और दाऊद के पुत्र भी मंत्री थे। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 6 चैप्टर 30 वर्स से 44 वर्स, नंबर्स 3 चैप्टर। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 30 वचन से 44 वचन, और गिनती की पुस्तक 3 अध्याय। जब 2 साल का बाइबल रीडिंग पढ़ना है, हमने अकेले में बैठकर इसे पढ़ना है, और अपने पर्सनल टाइम में, पर्सनल बाइबल स्टडी के समय में इसे बैठकर पढ़ना है। और जब हमने ये पढ़ते हैं तो इस समय में हमने व्यक्तिगत समय में इसको पढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कह रहा है, जो हमारे लिए कह रहा है। तो हमारे स्वभाव के लिए, हमारे गुणों के लिए, या हमारे कोई भी सोच विचारों को वो बदलने के लिए कुछ वचन में से हमको बता रहा है, तो हमने उसका नोट्स बना लेना है, और उसके अनुसार हमारे जीवन को हमने चलाना है। जैसे ही हम ऐसे करते जाएंगे तो 2 साल के अंत में देखेंगे वचन से ढला हुआ व्यक्ति हम तैयार हो जाएंगे, और परमेश्वर हमारा बहुत अच्छा इस्तेमाल कर पाएगा। तो इसके लिए हमने यह अनुग्रह पाया है, ऐसा हम कर सकते हैं, और ये हमने लाभ उठाना है कि हम इस प्रकार से बाइबल रीडिंग को करें अपने व्यक्तिगत समय में। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।